નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરના હસ્તે ભાજપના મધ્યમ ઝોનના મીડિયા સેન્ટરનો શુભારંભ કરાયો। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ ડિસેમ્બર માસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં યોજાવાની છે, ત્યારે બીજા તબક્કામાં મધ્યમ ગુજરાતની વિધાનસભાની સીટોનું મતદાન હોય। વડોદરા ખાતે મધ્યમ ગુજરાતના મીડિયા સેન્ટરનો પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરના હસ્તે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। આ તબક્કે તેમની સાથે આ સમારંભમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમકુમાર શુક્લાજી, પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, શહેર અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ વગેરે મહાનુભાવો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। આ પ્રસંગે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કરતા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમકુમાર શુક્લાજીએ જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શાસનમાં છેલ્લા 7 વર્ષમાં ભારત દેશનો સમગ્ર ક્ષેત્રમાં વિકાસ થયો છે અને તેની નોંધ સમગ્ર વિશ્વએ પણ લીધી છે। અત્યારે વિશ્વની મહાસત્તાઓ કહી શકાય એવા અમેરિકા, જાપાન, રશિયા, બ્રિટન વગેરે દેશો મંદીનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીજીની દીર્ઘ દૃષ્ટિના કારણે ભારત દેશને મંદીની કોઈ પ્રકારની અસર થઈ નથી અને તેનો વિકાસનો ગ્રાફ સતત ને સતત ઉપર જઈ રહ્યો છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌનો વિશ્વાસ એ સૂત્ર ખરા અર્થમાં સાર્થક થાય તે હેતુની નાત જાતના ભેદભાવ વગર તમામ વર્ગના લોકોને અને છેવાડાના માનવી સુધી કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ જનલક્ષી યોજનાઓ પહોંચાડવાનું કાર્ય ગુજરાતની ભાજપ સરકારે કર્યું છે। અત્યાર સુધી કોંગ્રેસે હંમેશા તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરી છે, તેને હવે સમગ્ર ભારત દેશની પ્રજા સારી રીતે ઓળખી ગઈ છે। આથી ગુજરાત જનતા પણ આવનારા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ તરફી મતદાન કરીને કોંગ્રેસને તેનો જડબાતોડ જવાબ આપશે। મહારાજા સયાજીરાવના શાસન દરમિયાન વડોદરાનો જે રીતે બહુઆયામી વિકાસ થયો હતો, તે જ પ્રમાણે નરેન્દ્રભાઈએ પણ વડોદરાનું વિશેષ રીતે ધ્યાન રાખી અહીં રેલવે યુનિવર્સિટી, સંરક્ષણના એરક્રાફ્ટ તૈયાર કરવાની ફેક્ટરી અને બીજા અન્ય પ્રોજેક્ટ વડોદરા ખાતે સ્થાયી અહીંના લોકોને રોજગારીની વિપુલ તકો પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારના વિવિધ વિકાસના કાર્યો કર્યા છે અને આવનારા સમયમાં વડોદરાની જનતાને એનો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લાભ મળવાનો છે। ત્યારે વડોદરાની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ સીટો ઉપર જિંદગી મતદાન કરી પ્રચંડ બહુમતીથી ભાજપના ઉમેદવારને વિજય બનાવશે એવી આશા આજે તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં વ્યક્ત કરી હતી। આજના શુભારંભ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો, શુભેચ્છકો અને વડોદરાના પ્રજાજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। वडोदरा शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजयभाई शाह, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन, डॉक्टर भरतभाई डांगर, मीडिया के मित्रों, गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार अपने जोर पर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने कल जैसे कहा है कि इस बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे रिकॉर्ड भंग करने वाला जनादेश देना सुनिश्चित किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, गुजरात की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी और गुजरात का मॉडल जिस तरह से पूरे देश ने अंगीकार किया है, गुजरात की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएगी, यह तो तय है। इसी के कारण विपक्ष हताशा के गर्त में गिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए फिर से एक बार विपक्षी नेता अपशब्दों की झड़ी लगा रहे हैं। जिस तरह से 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के अपशब्द से जो प्रारंभ किया था, अब तक 87 गालियां कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दे चुके हैं।
उसमें नई गाली का इजाफा गुजरात के नेता और कांग्रेस के जो चुनावों के निर्वाचन अधिकारी थे, ऐसे श्रीमान मधुसूदन मिस्त्री ने फिर से एक नई गाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उछाली है। और जब जब इस तरह की गालियां कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल देते हैं, उससे गुजरात की जनता और तीव्र गति से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनादेश देती है। जिस गुजरात का आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के पहले कुल बजट केवल 10,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह बजट 2,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यानी 24 गुना से ज़्यादा हुआ है। जिस गुजरात का कुल जीएसडीपी सिर्फ 99,000 करोड़ रुपयों का हुआ करता था, वहाँ आज 19 लाख करोड़ रुपयों की जीएसडीपी है। जिस गुजरात में केवल 21 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज वहाँ 103 विश्वविद्यालय हैं। जिस गुजरात में कभी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज वह गुजरात 100% नल से जल देने में समर्थ हुआ है। और जो लोग गुजरात में पानी रोकना चाहते थे, उन मेधा पाटेकर जैसे लोग किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। किसी जमाने में सैफुद्दीन सोज जैसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गुजरात में नर्मदा के पानी को आने के लिए हर संभव बाधाएं खड़ा करते थे। विश्व बैंक का ऋण नर्मदा प्रकल्प के लिए न मिले, इसके लिए कांग्रेसी षड्यंत्र रचा करते थे, वो आज गुजरात को गालियां दे रहे हैं। हताशा का दौर किस कदर है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता, विधायक और प्रत्याशी अब सांप्रदायिक राजनीति करने पर आमादा हो गए हैं। कांग्रेस के एक विधायक इंद्रजीत परमार ने, उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही डिस्पेंसरी खुलेगी, हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खोलने दी जाएगी। इसी तरह से उनके एक अन्य विधायक भरत ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि इस देश को और कांग्रेस को केवल मुसलमान ही बचा सकते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि इस प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी लघुमती के लोगों का है। आपको तो पता ही है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उनका कहना था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, सूचना थी, मुसलमानों का है। स्वयं राहुल गांधी अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग किस तरह से विकृत सांप्रदायिकता पर आमादा हैं, यह पूरा देश देख रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके गुजरात के चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के लिए गालियां दी जा रही हैं। गुजरात के सपूत, जिन आदरणीय नरेंद्र मोदी शिक्षण संस्था पिछले कई महीनों से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उनका नाम सबसे चोटी पर रखती है, जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मान सूचक आदरार्थी वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक उनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मोदी जी इजराइल में आकर चुनाव लड़ लें तो वह इजराइल में भी चुनाव उनके नेतृत्व में जीता जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया में शांति संस्थापित करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
शांति आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि विश्व को युद्ध की विभीषिका से मुक्त कराया जा सके। और रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपील पर रूस और यूक्रेन 2 दिन के लिए युद्ध विराम कर देता है ताकि भारतीय छात्र जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको सुरक्षित अपने देश में वापस भेजा जा सके। और नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है कि यूक्रेन में रहने वाले पाकिस्तानी छात्र भी अपने कंधे पर तिरंगा ध्वज रखकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की। ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए अगर गुजरात की धरती पर आकर लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर गुजरात की अस्मिता को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुजरात की जनता ऐसे लोगों को अपने जनादेश के माध्यम से निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। और गुजरात में इस बार सारे रिकॉर्ड भंग होंगे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह अब तो विपक्ष के मन में भी शेष नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोग हताशा में अब गुजरात और गुजरात के सपूत के लिए गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और चुनाव परिणाम आने के बाद विकास के लिए जुट जाती है। हम जिस वडोदरा शहर में बैठे हैं, यह इस वडोदरा शहर को या तो आदरणीय श्रद्धेय सयाजी राव गायकवाड़ ने या तो इसका विकास किया या गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। जब वह मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वडोदरा शहर को रेल कोच फैक्ट्री प्रदान की थी, और जब आज वह प्रधानमंत्री है तो उन्होंने इस वडोदरा शहर को विमान निर्माण करने वाला कारखाना देकर उन्होंने वडोदरा के लोगों के लिए विकास की गंगा को किस तरह से बहाना चाहिए इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जिस तरह से वडोदरा को रेल यूनिवर्सिटी दी गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के विविध मुख्यमंत्रियों ने किया है। और हम आज भी अपना वोट विकास के नाम पर मांग रहे हैं। शेष लोग जाति, गोत्र और धर्म के नाम पर बात तो करेंगे भारत जोड़ो की, लेकिन हरकतें करेंगे भारत तोड़ो की। ऐसे भारत तोड़ो वालों को निश्चित तौर पर जनता सबक सिखाएगी।